So this video is exclusively for the chapter electromagnetic wave. Where shortly we can tell as EMW. So today we will discuss what is the electromagnetic wave, how the concept came that electromagnetic wave exists, and what are the electromagnetic waves. So let me tell you one thing very clearly, that light is a electromagnetic wave. Well, I will say any kind of radiation according to your knowledge, whatever types of radiation we have seen, they are all at the form of electromagnetic wave. So we can say either that is a radiation and light or light, these are all electromagnetic wave. I mean radiation happen due to the phenomena of electromagnetic wave. It means the name clearly suggests that there will be an electric field, there will be a magnetic field, as well as they are in the form of wave. If I will tell you in the form of vector, then this would be the direction of electromagnetic wave. Where we can consider in the j cap direction there is an electric field. In k cap direction there is a magnetic field. Where in I cap direction there is a propagation of wave. If someone will ask you that what is light, simply you say light is an electromagnetic wave. I mean light constituent of three things. One is electric field, another is magnetic field, and simultaneously both electric field and magnetic field propagates in the direction of I cap. I mean in the direction of x direction. So if your electric field is in y direction, if your magnetic field in z direction, then light travels in x direction. So in case of x we take I cap, in case of y we take j cap, and in case of z we take k cap. So light is electromagnetic wave or any kind of radiation is electromagnetic wave. Okay, so you can note it down or take a screenshot. Note it down or take a screenshot. Then we will go for the next concept. Okay, let me clear this one. So I will give you an order here. If you remember, while teaching wave optics, I have told you an order of radiations. Again, I would like to repeat. This is your UV ray. UV means U for ultra, V for violet. So this is ultraviolet ray. Then come for X-ray. Oh, sorry. Sorry. Extremely sorry. I apologize. The first ray is gamma ray. Gamma. The first ray is gamma ray. Then X-ray. Then your UV ray. I would like to write the full name. Ultraviolet ray. Then this is your light. Then infrared. Okay. Then radio wave or microwave. Let's put here microwave. Microwave. Actually, we have a very congested space here. Infrared. Then your microwave.
your microwave. And the last is where I can write here na radio. Okay. This is the order of radiation. This is the order of radiation. The first radiation gamma ray, then it dwindled to X-ray, then it dwindled to ultraviolet ray, then it dwindled to light. This is the visible region of radiation. You can write visible radiation of light. Okay, so around 4000 angstrom to 8000 angstrom. So if somebody will ask you what is light, you can say then light is that radiation, light is that electromagnetic wave which is visible in the range of 4000 angstrom to 8000 angstrom. What is this angstrom? Angstrom is the unit of wavelength. Okay, so this is the wavelength of light. When you go from gamma ray to radio wave, first you come for gamma ray, then you come for X-ray, then you come for ultraviolet ray, then light, then infrared, then your microwave, and at last your radio wave. Okay. So when you go in the order from gamma ray to radio wave, your wavelength decreases. Sorry, your wavelength increases. Wavelength increases, but frequency decreases. If you move like this, then your wavelength, come on, lambda increases, but your frequency decreases. If somebody will ask you that which have greater wavelength, whether ultraviolet ray or gamma ray, your answer must be ultraviolet ray must have the larger wavelength than gamma ray. That point has to be remembered. If somebody will ask you between radio wave and microwave which has have larger wavelength, see पहले कौन है हमारा माइक्रोवेव है, बाद में कौन है रेडियो वेव है, तो इन दोनों के बीच में से लार्जर वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव। जो बाद में होगा ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, दिस इज अ फिक्स ऑर्डर है, ये तुमको हमेशा याद करना पड़ेगा ये ऑर्डर, जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, बस ऐसे ही तुमको याद रखना है इस ऑर्डर में, इसमें थोड़ी भी डेविएशन नहीं आनी चाहिए। ओके, सो अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि रेडियो वेव और माइक्रोवेव के बीच में ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो आंसर है रेडियो का। ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो आंसर होगा माइक्रोवेव। तो अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, मतलब वो घटता जाएगा और वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो स्पेक्ट्रम का तो थोड़ा ये कहानी हो गया, और ये वाला थोड़ा याद रख लेना तो कि लाइट का जो वेवलेंथ है ना वो करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक हो जाता है। मतलब यहाँ पे तुम्हें सातों कलर दिखाई पड़ता है, योर वी आई बी जी वाई ओ आर, अगर तुम्हें पता होगा स्पेक्ट्रम जो कि प्रिज्म वगैरह में तुम व्हाइट लाइट पास करके दूसरे साइड अगर एक स्क्रीन रखोगे तो तुम्हें वहाँ पे 7 कलर उसका दिखाई पड़ेगा। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं ऑप्टिक्स में, राइट। तो यहाँ पे बस मैं उसका इंट्रोडक्शन देता था, और ये अप्रोक्सीमेटली रेंज है। ओके, ये अप्रोक्सीमेट रेंज है, उसका जो एग्जैक्टली तुम्हें मिल जाएगा ये करीब करीब तुम्हारा 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 तक मिल जाता है, लेकिन हम कुछ राउंड ऑफ उसको कर देते हैं ताकि तुम्हें याद करने में थोड़ा इजी होगा। ओके, सो दिस इज योर 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो यू कैन टेक a screenshot or note it down. I am going to erase this one. ओके, अभी हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना इसका हिस्ट्री क्या था और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे एक्चुअली। सो हम शुरू करते हैं। इन 1831, मतलब बहुत पुरानी बात, करीब 200 साल पहले,
फैराडे, तुम लोगों ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया होगा, तो तुम्हें पता होगा कि फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिए थे। फैराडे ने ये बोला इन 1831 कि ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ए चेंज इन मैग्नेटिक field produces electric field. So this is the statement of Faraday's electromagnetic induction. Faraday told in 1831 that a change in magnetic field produces an electric field. अगर तुम्हारा कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलो इसको थोड़ा फॉर्मूला में लेते हैं जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। सो उसको कुछ ऐसा लिखा होगा E डॉट dl इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फोर्स को हम कुछ ऐसे लेते हैं d5 और आगे माइनस लगा दो। ओके, और अगर तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया होगा तो ये भी पता होगा कि ये फॉर्मूला को कुछ ऐसे भी लिखा जाता है माइनस d5। ओके, ये वाला जैसे भी राइट। सो दिस इज Faraday's law for electromagnetic induction, राइट। अच्छा, चलो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? मतलब मैं उसका रिवर्स कर रहा हूँ। ओके, इफ योर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेदर द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड? यस, इट कैन प्रोड्यूस। देन मींस ओके, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ओके, देखो आप क्या करें, ये थोड़ा समझा देता हूं कैसे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक सर्किट है और ये वाला मैंने जो क्रॉस मार्क यहां पे किया है ना, ये है तुम्हारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चेंज इन मतलब ये जो क्रॉस मार्क हम कर रहे हैं वो इनसाइड है यार, पता है ना। अगर तुम्हारा कोई भी फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है, तो हम उसे क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है तो हम उसे डॉट मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऑलरेडी पढ़ लिया होता है, तो ये बात हमें यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि क्रॉस मार्क का मतलब क्या है, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ होगा, राइट। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और वो लगातार चेंज हो रहा है। किसके साथ? टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ना अंदर की तरफ चेंज होता ही जा रहा है। इट इज नॉट ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा उसको d5b, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वो लगातार चेंज होता है। किसके रेस्पेक्ट में? ना टाइम के रेस्पेक्ट में, अंदर की तरफ। तो होगा क्या, अगर तुम्हारा कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो क्या इसका डायरेक्शन तुम्हें पता है? ये सब चीज को हम कैसे, उसका नोमेनक्लेचर क्या है डायरेक्शन का, मतलब डायरेक्शन वगैरह हम कैसे डिसाइड करते हैं? तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल, ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड, देखो ये हो गया राइट हैंड तुम्हारा, उसको ऐसे फिस्ट करो, ये मुट्ठी ले लो इसे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। थंब को ऐसे खुला करो, अभी
जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ तुम अपना थंब पैरेलल कर दो और जिस तरफ ये कर्व घूमेगा ना उस तरफ तुम्हारा प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है उसके डायरेक्शन का पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का हेल्प लेते हैं। ओके, राइट हैंड थंब रूल का। तो पहले राइट हैंड को ऐसे कर लो, कॉल को घुमा लो, फिर ये जो थंब है उसको अंदर की तरफ कर लो, ये वाला कर्व जिस तरफ खुलता है उस तरफ तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो अभी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। क्या समझ में आ रहा है? अंदर की तरफ तो तुम्हारा फील्ड किस तरफ होगा, हो रहा है। तो ये सब चीज तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, जो कि तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ओके, ये हमेशा तुम्हारा परपेंडिकुलर रहेगा किसको, मतलब जहां भी तुम्हें ये दोनों फील्ड दिखे तो तुम ये पता कर लेना कि ये आपस में दोनों में कितने एंगल में है, 90 डिग्री। और पर्टिकुलरली डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल है तुम्हारे पास, राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो इतना नोट कर लो, फिर इरेज करते हैं, दूसरे टॉपिक को जाएंगे। हो गया, चलो इरेज कर देते हैं। तो अभी सवाल क्या पैदा हुआ, कैन ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडे साहब ने तो हमको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो हम उसको उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? तो आंसर है तो यस। लेकिन ये वाला जो यस है ना, ये आज के डेट में हमें पता चल रहा है, राइट, लेकिन उस टाइम मतलब 1831 में इसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। इसको एडमिट करना, ये स्टेटमेंट को बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पे। तो एक साइंटिस्ट हमारा आए जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने बताया कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया था वो चीज को, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा, वो होगा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। वो डिस्प्लेसमेंट करंट थ्योरी से ये प्रूव कर दिए थे कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है ना, तब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट थ्योरी से वो ये बात प्रूव कर दी। ओके, सो उनका नाम क्या था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। वेरी फेमस नेम, तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो मैक्सवेल। सो मैक्सवेल इक्वेशन करके हम पढ़ते हैं, तुम्हारा फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाया जाता है मैक्सवेल इक्वेशन करके। उनका 4 बहुत फेमस इक्वेशन है, वो भी हम देखेंगे एंड ऑफ दिस लेक्चर। जब ये लेक्चर खत्म होता जाएगा तब हम देखेंगे वो 4 इक्वेशन। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी देने में या फिर लाइट और रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताने में इनका कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़िया था मैक्सवेल का। मतलब यही वो आदमी थे या फिर यही वो साइंटिस्ट थे जिसने पहली बार बोले थे कि ये जो रेडिएशन लाइट वगैरह ये सब चीज जो बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। वो एक्चुअल में है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब वो तीनों चीज का मिलन है, वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि आपस में 90 डिग्री में है। ये इसको 90 डिग्री में है, वो इसको 90 डिग्री में है, ये इसको 90 डिग्री में है। ऐसे करके वो एक बढ़िया सा थ्योरी दिए थे, जिसको हम ये चैप्टर करके पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ओके, चलो इसको नोट करो, फिर देखते हैं डिस्कसमेंट करके।
उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ओके चलो, तो चलो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब ये आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये आया तुम्हारा मैक्सवेल साहब का डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट से। मैक्सवेल्स कैसे लिखा? मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्या ये वाला चीज तुम्हें थोड़ा नया नहीं लगा है? डिस्प्लेसमेंट करंट ये कौन सा टाइप का करंट है? अब तक तो तुमने पढ़ा था, नॉर्मल करंट पढ़ा था, तुम्हें पता है ना सबको। करंट का फॉर्मूला ये होता है ना, I इक्वल टू dq by dt। हेलो डियर, लिसन डियर, क्या सबको पता है I इक्वल टू dq by dt? यस, ये तो तुमने ऑलरेडी पढ़ रहे हो। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही हम लोग ने ये चीज तुमको बता के रखा है कि जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ये फिर से तुमको याद दिला देता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, पता है ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट यू इलेक्ट्रिक करंट, ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये सबको पता है, मैं मान के चलता हूं। ओके, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला करंट है ना, ये कुछ नया चीज है, राइट? तो हम उसको क्या ऐसे लिखेंगे, क्या I और नीचे लिखेंगे D, डिस्प्लेसमेंट का। ओके, इसका कुछ सिंबल हम कैसे दें? इसका एक फॉर्मूला भी निकाला था मैक्सवेल साहब ने, जिसका फॉर्मूला था क्या पता है ना, E नॉट D फाई नीचे से E अपॉन। मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। मतलब जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, चेंज इन, जहां पे तुम्हारा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो ये चीज थोड़ा बेटा था। अभी क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है ऐसा क्यों आया, राइट? दिस इज द क्वेश्चन मस्ट बी अराइज्ड इन योर माइंड। ओके, चलो ये डिस्कशन करते हैं। तो मैक्सवेल साहब ने किया एक्चुअली, उन्होंने एक सर्किट ले लिया, कैपेसिटर का एक सर्किट ले लिया। यहां पे ऐसे कैपेसिटर रख लिया उन्होंने और यहां पे एक बैटरी लगा दिया है। ये है तुम्हारा कैपेसिटर, मान के चलो C। ओके, यहां पे एक बैटरी लगा दिया, मान लो ये वोल्ट में है। तब मैं क्या करूंगा, थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं कि दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग, ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर कोई भी कैपेसिटर सर्किट में तुम्हारा एक बैटरी ऐसे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है मतलब क्या? चार्ज हो रहा है इसका मतलब क्या? इट मींस द चार्ज इज ट्रांसफरिंग, चार्ज अभी ट्रांसफर होगा। मान लो ये वाला जो प्लेट है ये तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है। क्या तुम लोगों को याद है, तुमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा होगा, दो प्लेट ऐसे होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है d, इन दोनों प्लेट का एरिया होता है a, ये सबको पता है। ऑलरेडी हम लोगों ने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब चीज पढ़ा दी है। ओके, तो दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको मैं बैटरी लगा के चार्ज कर रहा हूं। अभी देखो, थोड़ी देर के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ओके, थोड़ी देर। तो ये बैटरी क्या करेगा ना, यहां से थोड़े थोड़े चार्ज लेके dq चार्ज यहां से खींच के, मतलब कि जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला ये जो चीज है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये सब थ्योरी तुम्हें पता है चार्ज का। ये पॉजिटिव है मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ चलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां तक लाएगा, इसमें चिपकता रहेगा, राइट? यहां से चिपका लेगा इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब यहां से dq चार्ज हो लेगा और यहां लेके भर्ती कर देगा dq चार्ज, यहां से निकालेगा,
यहाँ से भर्ती करेगा, यहाँ से निकालेगा, यहाँ से भर्ती करेगा। मतलब लगातार चार्ज का क्या हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है क्या? लगातार चार्ज के साथ क्या हो रहा है? चार्ज चेंज हो रहा है, राइट? चार्ज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, तो तुम्हारा लगातार क्या हो रहा है? चार्ज यहाँ पे चेंज हो रहा है। तुम्हें पता है अगर तुम्हारा लगातार चार्ज चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा ये करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ पे, राइट? तो ये डायरेक्शन में तुम्हारा, मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ, एक करंट फ्लो हो गया। ये वाला जो करंट है ना, इसको मैं बोलूंगा आईसी। आईसी होता है कंडक्शन करंट। आईसी जो होता है वो होता है कंडक्शन करंट। मतलब ये नॉर्मल वाला करंट है ना, ये नॉर्मल वाला करंट है, ये वो डिस्प्लेसमेंट वाला करंट नहीं है। मैं फिर से तुम्हें बताना चाहूंगा, यहाँ पे चार्ज टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से ये सर्किट में यहाँ पे तो मैंने डायरेक्शन दे दिया करंट का, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को मैं एक नॉर्मल करंट बोलूंगा और मैं उसका नाम ये भी दे दूंगा मैं कि वो है कंडक्शन करंट, जिसको मैं कुछ इस टाइप लिखूंगा, आई के नीचे सी लिखूंगा और वो लिखूंगा कंडक्शन करंट। और वो किसकी वजह से बना है? चार्ज चेंज होने की वजह से। ओके, तो यहां तक समझ में आया सबको? चलो अभी देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही बढ़िया चीज है, देखो कैसा हो। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या ये जो ये वाला रीजन है, ये बीच में खाली है ना? देखो कैपेसिटर में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव वाला प्लेट है, ये नेगेटिव वाला प्लेट है और चार्ज लगातार चेंज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज हो रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो करंट यहां से आ रहा है तो बीच में गायब हो गया, फिर वापस करंट ऐसे जा रहा है, ऐसा ही है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऐसा फ्लो हो रहा है तो करंट ऐसा ही फ्लो होगा। और तुम्हें पता होगा करंट के लिए क्लोज सर्किट चाहिए। करंट नीड्स ए क्लोज पाथ टू फ्लो। करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज सा रास्ता चाहिए, राइट? लेकिन तुमने यहां देखा कि यहां तो गैप है, थोड़ी ना तुम्हारा कैपेसिटर का कोई दो के बीच कुछ है। मतलब जरूरी ये नहीं कि डाइलेक्ट्रिक हमेशा हो, बिना डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। मान लो ना ये बिना डाइलेक्ट्रिक का एक कैपेसिटर है तो बीच में तो कुछ नहीं है, तो यहां से करंट क्या जंप कर गया है क्या? करंट यहां से यहां कैसे फ्लो हो गया? जंप कर गया क्या? हाँ, तो यही जो थ्योरी था ये मैक्सवेल के उनके दिमाग को ये टकराया है, ये वाला थ्योरी। तो वहां पे उन्होंने डिस्कवर किया डिस्प्लेसमेंट करंट का। वो क्या बोले कि अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है, ये तुम्हारा नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, राइट? लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज होता जा रहा है, क्यों? ये नॉर्मल स्टेडी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है, ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लगातार चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि चार्ज ही चेंज हो रहा है तुम्हारा। यहां से चार्ज जा रहा है, यहां पे चिपक रहा है, यहां से चार्ज जा रहा है, यहां पे चिपक रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बीच में थोड़ा गैप था और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम मैक्सवेल ने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन एक्चुअल में उनका जो थ्योरी था वो क्या था कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और वो जाके खत्म कहां पे होता है? नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है। मतलब पॉजिटिव फील्ड से एक लाइन निकलता है और नेगेटिव प्लेट पे जाके खत्म होता है। तो यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इतना तक थ्योरी उनका सही था। अब देखो मजेदार चीज क्या है, उन्होंने टेस्ट कैसे किए। उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास ली, मैग्नेटिक नीडल जो चेक करते हैं नॉर्थ पोल किधर होता है, साउथ पोल किधर होता है, ओके, वो वाला एक कंपास ले ली, एक नीडल ले ली, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसे उसको रखा। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक जो कंपास है तुम्हारा वो डिफ्लेक्ट कर गया, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब वो हिल गया, राइट? नॉर्थ साउथ पॉइंट करना शुरू कर दिया वो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और होगा भी जनरली, राइट? अगर ये कोरेंटाइन कंडक्टर है
तो उसके अंदर करंट हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर तुम्हारा देखो करंट ऐसा है तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसके हिसाब से उनका मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंदर कुछ थोड़ी ना वैक्यूम में थोड़ी ना तुम्हारा, तो यहाँ पे लिख रहा वैक्यूम या फिर स्पेस में तुम्हारा थोड़ी ना कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने नीडल रखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जब उन्होंने ऐसे मैग्नेटिक कंपास रखा नॉर्थ साउथ करके, वो भी हिल गया। दिस इज वेरी अस्टोनिशिंग, दिस इज क्वाइट वंडरफुल थिंग। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, अगर वहां पे खाली जगह है, स्पेस है, देन व्हाई दैट मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टिंग, व्हाई दैट मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टिंग। तो उन्होंने एक थ्योरी सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि लगातार चेंज होता जा रहा है, उसकी वजह से उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, और उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये जाके वो उन्हीं टाइम के जो बड़े बड़े सब लोग थे उनको सब जाके ये थ्योरी बता दिया, लेकिन उन्होंने वो चीज को माना नहीं था। उस टाइप के जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने मैक्सवेल को मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये थ्योरी तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं होगा, तुम्हारा हमने तो आज तक ऐसा कुछ कहानी नहीं सुना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हाँ, तुम अगर ये कहोगे कि करंट होता है वहां पे, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ये बात को थोड़ा एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं होगा। तब उन्होंने अपना दिमाग चलाया और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब दुनिया को ये उन्होंने दिखाया कि चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम जो कहते हो वो सही, चलो यहाँ पे करंट हम मतलब वो एक्चुअली में है नहीं करंट, क्योंकि वो तो स्पेस है ना, वहां थोड़ी ना कोई करंट है। लेकिन उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना लिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे एक करंट है जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो ये करंट के साथ इक्वल कर दिए, जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन करंट। चलो वो लिखते हैं थोड़ा। हाँ, सो मैक्सवेल ने क्या बोला, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला करंट है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कंडक्शन करंट के बराबर है। अच्छा, इस ये वाला चीज उन्होंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक ऐसा थ्योरी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को बेस करके इन्होंने ये बोल दिया कि कंडक्शन करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। मतलब ये जो कंडक्शन करंट है ना, ये वर्चुअल करंट है, ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक वर्चुअल करंट है ना। वर्चुअल करंट मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल सेंस। यहां पे लिख लेता हूं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, it does not exist, oh, my handwriting is so bad यार, और ऊपर से ये वो अच्छा हैंडराइटिंग नहीं होता। It does not exist in real sense, मतलब सच में ऐसा कोई करंट है नहीं, हम उसे मनगढ़ंत कहानी बना दी। सो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम आईडी लिखते हैं, और ये वर्चुअल करंट है जो कि सच में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये करंट आया कहां से ना, मेन करंट को हमने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कंडक्शन करंट को हमने डिस्प्लेस कर दिया, और उसके बदले हमने लिख लिया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड किस लॉ पे हम इक्वल कर रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत हम इसको इक्वल कर रहे हैं। ओके, तो ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, मनोबड़ा कहानी है। तो भैया सुनिए, हम बोले थे खाना करो मनोबड़ा कहानी। ओके, चलो चलो, तब एक सवाल बताते हैं, प्रूफ डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन। क्या ये दोनों चीज बराबर है? चलो इसको देखते हैं क्या। हाँ,
इसको थोड़ा प्रूफ करना है, क्या सच में ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है। करेंगे क्या, इसको प्रूफ करेंगे। चलो, क्या तुम्हें याद है थोड़ी देर पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला लिखा था, ID इक्वल टू E नॉट इंटू डी फाइव ई बाई डी टी। क्या सबको याद है ये फॉर्मूला हमने लिखा था। चलो, मुझे प्रूफ क्या करना है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट करंट सच में इसके बराबर है या फिर ऐसे ही मतलब इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है क्या या फिर नहीं। चलो दूसरी देखते हैं। चलो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं ना, ये है तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट वाला और ये है तुम्हारा नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस टाइप का होगा ना, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये प्लेट का एरिया वेक्टर मुझे बता सकते हो क्या, ये है ना उसका एरिया वेक्टर, दिस इज ए। क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम है। और तुम्हें पता है तो ये इक्वेशन देखो, ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। क्या तुम्हें याद है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है E डॉट ए। क्या सबको याद है। अच्छा, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, d बाई डी टी। अच्छा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब यहाँ पे जो cos थीटा आएगा वो cos 0 आएगा और तुम्हें पता है cos 0 का वैल्यू है 1। सो E है मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैं ऐसा लिखूंगा डायरेक्ट ना, E है। ओके, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, चलो। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होता है, इसकी वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों का मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना वो हो जाए तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये चीज हम तुम्हें कैपेसिटर में ऑलरेडी बता गया है, ऑलरेडी बता गया है ये सब चीज, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ा रहे थे ना तब कैपेसिटर में ये सब चीज डिस्कस हो चुका है। तो चलो, ये फॉर्मूला में देखो E नॉट डी बाई डी टी, E के बदले मैं थोड़ा इतना डाल देता हूं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। हो गया क्या। अच्छा, क्या तुम्हें सिग्मा का वैल्यू पता है, ये तो चार्ज डेंसिटी है। सो क्या सिग्मा के बदले मैं लिख सकता हूं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। यहां से देखो ए कैंसिल हो गए। अच्छा, यहां से Q और एप्सिलॉन नॉट के बीच में से कांस्टेंट कौन है, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि तो चार्ज तो लगातार चेंज हो रहा है, यहां से चार्ज जा रहा है, यहां चिपक रहा है, मतलब चार्ज तो यहां पे वेरिएबल है और तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो देखो मैं थोड़ा अभी ये इक्वेशन को यहां पे लिख रहा हूं, ID इक्वल टू, पहले से एप्सिलॉन नॉट था, अभी ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, मतलब ये भी ऐसा बन गया और अंदर बच गया तुम्हारा dq बाई dt। क्यों, तुम बोलोगे क्या Q कांस्टेंट नहीं है क्या, नहीं, यहाँ पे Q कांस्टेंट नहीं है क्योंकि चार्ज तुम्हारा लगातार चेंज हो रहा है, तो Q अंदर ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया ID इक्वल टू dq बाई dt। और तुम्हें पहले से पता है कंडक्शन करंट का मतलब है dq बाई dt। सो फाइनली ये प्रूफ हो गया कि ID equal to IC. So this is a very good question and here I have given you the proof. Note it down or take a screenshot. एक्चुअल साहब ने प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना वो तुम्हारा कंडक्शन करंट के बराबर होता है।